classes. I am Manisha Srivastava. Today I am going to explain chapter 2 of the book Snapshots, which is for students of class 11th. The title of the chapter is The Address, written by Marga Minko. In this video, I will tell you about the author, chapter sketch and characters, and detailed summary of the chapter. So let's begin with about the author, who is Marga Minko. Marga Minko, born on 1920 and died on 1992, was a Dutch journalist and writer. In 1957, Minko published her first book, The Bitter Herb. Her other works include The Other Side, The Fall, etc. She won P.C. Hooft Award for her entire writing career in 2018 and many more awards. Now moving to next point, which is chapter sketch and characters. The story is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, she leaves everything behind. As it could not bring her dead mother back, she decides to move on and live with only memories of the former times. The address that held so much importance till she visited that place lost its value, and the girl realized that it could get her nothing but pain. Children, इस स्टोरी के बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर है और एक लड़की की बहुत टचिंग स्टोरी है जो वॉर के बाद जब थोड़ा सेटल हो जाता है सब कुछ, तो अपनी माँ के कीमती सामान की तलाश में एक एड्रेस तक पहुँचती है। हालांकि वो एड्रेस खोज लेती है और जिस सामान को, जिन चीज़ों को वो छूना चाहती थी, फील करना चाहती थी, याद करना चाहती थी, वहाँ तक पहुँचने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि वो अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अब उसकी माँ को वापस नहीं ला सकती। इसलिए वो जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है और वो चीज़ें वहीं पर छोड़ देती है। Now talking about the characters here, three main characters described in the story. First one is the daughter, who is the narrator or writer also, who returns to Holland to go to the address where her mother's precious belongings were kept. As normalcy had returned after the Second World War in Holland, she wanted to see all possessions that were a bond between her family and herself. The second character is Mrs. S, who is narrator's or writer's mother here in the story. The narrator's mother has been called as Mrs. S. She was a simpleton who could not see the manipulating and fraudulent nature of Mrs. Darling, her old acquaintance. She trusted Mrs. Darling and allowed her to keep all her precious belongings for the time being. Mrs. S, narrator की माँ, बहुत ही सीधी सादी औरत है और मिसेस डॉर्लिंग, जो कि उनकी पुराने जानने वाली हैं, उन पर ट्रस्ट करती हैं और अपना सारा सामान उनको कुछ समय के लिए रखने के लिए दे देती हैं। Now the third main character is Mrs. Darling. She has been described as an old acquaintance of Mrs. S. After a long gap, she appeared again during the war. She possessed a cunning personality. She is most reluctant to recognize the daughter and does not allow her to enter the house. बहुत कनिंग पर्सनालिटी है जो मिसेस एस का सारा सामान रख लेती है और उनकी डॉटर जब उसके घर पर आती है अपने सामान के लिए, तो उसको पहचान कर भी दरवाजा नहीं खोलती है। Now I will tell you the detailed summary of this chapter. The summary of the chapter is: the narrator knocked at the door of a house, but the door was opened only a little. नरेटर एक एड्रेस को खोजते खोजते एक घर पे पहुंचती है और वहां डोर नॉक करती है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल थोड़ा सा खुलता है। शी आस्क्ड द ओनर इफ शी न्यू हर। वो मकान की मालकिन से पूछती है कि क्या आप मुझे जानती हैं। द नरेटर टोल्ड हर दैट शी वॉज मिसेस एस डॉटर, लेकिन उधर से कोई रिएक्शन नहीं मिलता, तो नरेटर खुद ही बताती है कि वो मिसेस एस की बेटी है। बट द ओनर ऑफ द हाउस मिसेस डॉर्लिंग डिनाइड नोइंग हर, लेकिन जो मालकिन है उस हाउस की, मिसेस डॉर्लिंग, वो उसको पहचानने से नरेटर को इनकार कर देती है। Mrs. Darling's face gave absolutely no sign of recognition and she kept staring at her without
speaking any word. मिसेस डॉर्लिंग के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था कि वो नरेटर को पहचानती हैं और वो लगातार बिना कुछ बोले उसको घूर के देखती चली जा रही थी. The narrator thought that perhaps she was mistaken and had rung the wrong bell. नरेटर ये सोचती है कि शायद वो गलत घर में चली गई है और उसने गलत बेल बजा दी है. Then the narrator got a glimpse of her mother's green knitted cardigan which Mrs. Darling was wearing. तभी अचानक नरेटर की नजर एक हरे रंग के कार्डिगन स्वेटर पर पड़ती है जो मिसेस डॉर्लिंग ने पहन रखा है. वो उसकी माँ का है, नरेटर की मदर का है. This confirmed to her that she had reached the correct address. वो हरे रंग का कार्डिगन जो मिसेस एस यानी नरेटर की माँ का था, इससे नरेटर को कंफर्म हो गया कि वो सही एड्रेस पर पहुंची है. But Mrs. Darling excused herself by saying that she could not talk to the girl that day and she would come again later. लेकिन मिसेस डॉर्लिंग अब सीधे सीधे एक्सक्यूज देती है कि वो आज इस समय नरेटर से बिल्कुल बात नहीं करेगी और वो किसी और समय उससे मिलने आए. Then she shamelessly closed the door. और बिल्कुल shamelessly नरेटर के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है. The narrator stood for some time on the steps even after the door closed. Narrator कुछ समय तक स्टेप्स पे सीढ़ियों पर खड़े रहती है दरवाजा बंद होने के बाद भी. Someone was watching her from the bay window. The girl presumed that someone other than Mrs. Darling must be watching her and must have asked why the narrator came there. कोई उसको किनारे की विंडो से देख रहा था. तो नरेटर ने ये प्रेज्यूम किया, ये अंदाजा लगाया कि मिसेस डॉर्लिंग के अलावा भी कोई घर में था जो खिड़की से उसकी तरफ देख रहा था और उसने जरूर पूछा होगा मिसेस डॉर्लिंग से कि बाहर कौन आया है. After this refusal, the narrator walked back to the station thinking about her mother. मिसेस डॉर्लिंग से इनकार सुनने के बाद नरेटर स्टेशन की तरफ वापस लौटती है और रास्ते में अपनी माँ के बारे में सोचती रहती है. Her mother had given her Mrs. Darling's address years ago. उसकी माँ ने सालों पहले उसको मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था. It had been in the first half of the war. जब वॉर चल रही थी उसके फर्स्ट हाफ में यानी शुरुआत के दौर में ही दिया था. The narrator's mother told her about Mrs. Darling and old acquaintance. और ये एड्रेस देने के साथ ही उसकी माँ ने उसको मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था कि वो उनकी कोई पुरानी जानने वाली थी. She also informed her that every time when Mrs. Darling came, she took something home with her. उन्होंने ये भी बताया था नरेटर को कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग आती है मिलने के लिए वो कुछ ना कुछ उनका सामान लेकर चली जाती हैं. The reason Mrs. Darling gave for her actions was that she wanted to save all the good things as the narrator's mother would not be able to save everything if they had to leave suddenly. इस बात का रीजन मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर की मदर को क्या दिया था कि वो उनके सारे अच्छे सामानों की, सारे प्रेशियस बिलोंगिंग्स की सेव करना चाहती थी क्योंकि वॉर के समय कुछ भी हो सकता था. वॉर के समय कुछ भी हो सकता था मीन्स उन लोगों को अचानक घर छोड़ना भी पड़ सकता था. तो ऐसी स्थिति में वो लोग अपना सामान संभाल नहीं पाते. तो ये एक्सक्यूज देकर और ये रीजन बताकर मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से सारा सामान ले गई थी अपने साथ. The narrator's mother had accepted the idea. मिसेस एस यानी नरेटर की मदर को ये आइडिया अच्छा लगा था कि इससे उनका जो सामान है वो बच सकता था. She was rather obliged towards Mrs. Darling that she was carrying such heavy baggage every time she visited, as it was really risky during the war. मतलब बल्कि वो उनकी एहसानमंद थी मिसेस डॉर्लिंग की कि वो इतना भारी भारी सामान उठाकर अपने घर तक ले जाती हैं और उनकी इतनी मदद कर रही हैं जो कि वॉर के समय, युद्ध के समय इतनी भयानक स्थिति में ऐसा करना बहुत ही डेंजरस था उनके लिए भी और फिर भी वो ऐसा कर रही हैं. The narrator arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इन्हीं ख्यालों में अपने पास्ट में खोए हुए अपने माँ के बारे में याद करते हुए नरेटर स्टेशन पहुंच जाती है और रास्ते में जो भी चीजें, जो भी रास्ते, मकान वगैरह पड़े थे सब बिना उसको कोई ध्यान दिए हुए
She was walking in familiar places again for the first time since the war. जिन जगहों से वो गुजरकर स्टेशन की तरफ आई थी, वो सब जगहों को अच्छे तरीके से जानती थी और वहाँ उस रास्ते से वो वॉर के बाद पहली बार गुजर रही थी. She did not want to upset herself with the sight of streets and houses full of memories from a previous time. लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उन रास्तों पर या उन मकानों पर जिसमें पहले समय की, पिछले पास्ट की उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा कंसंट्रेट करे. In the train, she remembered the first time when she had seen Mrs. Darling. वो जो कि पास्ट में खोई हुई है, अभी भी अपनी माँ को याद कर रही है, तो उसको याद आता है कि पहली बार जब उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था. It was the morning after the day her mother had told her about Mrs. Darling, who was wearing a brown coat and a shapeless hat. जिस दिन मिसेस एस यानी नैरेटर की मदर ने नैरेटर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था कि वो उनकी पुराने जानने वाली हैं और उनका थोड़ा बहुत सामान लेती जा रही हैं, उसके अगली सुबह को ही मिसेस डॉर्लिंग को देखा था नैरेटर ने, जिन्होंने ब्राउन कलर का कोट और एक शेपलेस हैट पहना हुआ था. The narrator had asked from her mother if she lived far away. तो नैरेटर ने उस वक्त अपनी माँ से पूछा था कि क्या मिसेस डॉर्लिंग बहुत दूर रहती हैं? As she was carrying a heavy case, क्योंकि वो बहुत ही अपना भारी सूटकेस उन्होंने पकड़ा हुआ था. Her mother told her that Mrs. Darling lived at number 46 Marconi Street. तब उसकी माँ ने उसको बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में रहती हैं. तब से नैरेटर को वो एड्रेस याद था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. The narrator had remembered the address but waited a long time to go there. वॉर खत्म होने के बाद नैरेटर को वो एड्रेस तो बहुत अच्छे से याद था, लेकिन उसने बहुत लंबे समय तक वहां जाने के लिए इंतजार किया. Initially, after the war was over, she was not interested in all their belongings lying with Mrs. Darling. शुरुआत में जब वॉर खत्म हुई तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी उन सामान के बारे में जानने की जो कि मिसेस डॉर्लिंग के पास थे. She was afraid to see the things that had belonged to her dead mother. क्योंकि ऐसी वो चीजें जो उसकी मदर की थी, जो कि मर चुकी थी, उसको वो देखने से भी डर रही थी. She did not want to see their belongings lying in Mrs. Darling's house in boxes and cupboards and needing to be put back in their old places again. वो उन belongings को, उन चीज़ों को नहीं देखना चाहती थी जो मिसेस डॉर्लिंग के घर उनके बॉक्सेस में या उनके कवर्ड्स में पड़े हों और वापस अपने जगह पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हों. She was scared that the things might make her very nostalgic. वो बहुत ज़्यादा डरी हुई इसलिए थी कि उसको लग रहा था कि वो चीज़ें देखकर वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक यानी पुरानी यादों में खो जाएगी, अपनी पास्ट को बार बार रिमेम्बर करेगी. But gradually her life became normal again and one day she became curious to know all about the possessions. लेकिन जल्दी ही उसकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो गई, वॉर के बाद वो सेटल हो गई, तब उसको फिर अपने सामान की चिंता होने लगी. After her first visit did not yield any result, she decided to visit a second time. पहली बार जब वो गई थी तो मिसेस डॉर्लिंग ने बिल्कुल पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने फिर ये निश्चय किया कि उसको एक सेकेंड विजिट करना चाहिए मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पर. This time a girl of about 15 opened the door. इस बार दरवाजा एक लड़की जिसकी लगभग उम्र 15 साल थी उसने खोला. As her mother was not at home, क्योंकि उसकी माँ मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी. The narrator asked about Mrs. Darling. नैरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पूछा. She was told that Mrs. Darling was not at home. तो नैरेटर को बताया गया, उस लड़की ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं थी. She followed the girl along the passage. दरवाजा जब खोला उस लड़की ने तो दरवाजे के अंदर एक लंबा पैसेज था, तो वो उसके पीछे 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 पैसेज को क्रॉस करते हुए गई. She noticed an old-fashioned iron candle holder which they never used. तो रास्ते में उसने अपना यानी उसकी माँ का, नैरेटर की माँ का ओल्ड फैशन का एक लोहे का बना कैंडल होल्डर देखा जो वो अपने घर में कभी यूज नहीं करते थे. They went into the living room. वो अपने फिर लड़की नैरेटर को अपने लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम में लेकर चली गई. नैरेटर was horrified. नैरेटर बिल्कुल घबरा गई. She found herself in the midst of their old belongings, but they oppressed her as they were kept in
strange surroundings and in a very tasteless manner. मतलब कि वो अपने आप को अपनी पुरानी चीज़ों के बीच पाती है। चारों तरफ लिविंग रूम में उसके पुराने सामान रखे हुए थे, लेकिन उससे उसको बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो बहुत टेस्टलेस तरीके से, मतलब बेढंगे तरीके से रखे हुए थे और एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में रखे थे। स्ट्रेंज सराउंडिंग में मतलब अजनबी जगह पर रखे हुए थे, तो उसको देख के बहुत दुख महसूस होता है। She was hurt to see her family's belongings lying in a tasteless way with the ugly furniture and muggy smell. उसको देखकर बहुत हर्ट होता है कि उसकी फैमिली का सारा सामान बहुत ही बेढंगे तरीके से रखा है और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है वहाँ से। The tablecloth, the silver cutlery and even the still life showing the apple on the tin plate belonged to her family. जो टेबल क्लॉथ लगा था और सिल्वर की कटलरी यानी प्लेट्स, स्पून्स वगैरह और स्टिल लाइफ शो करता हुआ एक एप्पल जो टिन प्लेट पे रखा था, वो सब कुछ सारा सामान उसकी फैमिली को बिलोंग करता था। She was keenly observing the girl who had a broad back similar to that of Mrs. Darling. वो बहुत कीनली ऑब्जर्व करती है लड़की को, बहुत मतलब जिज्ञासा से देखती है कि कैसी है ये, कौन है। उसका भी बैक यानी पीठ ब्रॉड थी, चौड़ी थी मिसेस डॉर्लिंग की तरह, तो उसको पता चल जाता है कि ये बेटी है मिसेस डॉर्लिंग की। द गर्ल वॉज प्लेसिंग टी कप्स फॉर टी टू बी सर्व्ड। लड़की क्या कर रही थी? टी कप्स अरेंज कर रही थी ताकि वो चाय ले सके। She was pouring tea from a white teapot which had a gold border on the lid and then she took out some spoons from the box. वो चाय निकालती है एक सफेद रंग के टीपॉट में से जिसकी लिड यानी ढक्कन पर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ है। उसके बाद वो कुछ चम्मच निकालती है बॉक्स में से। All this crockery and cutlery belonged to the narrator's family, but perhaps the girl was not aware of this fact. ये सारा कटलरी, ये सारे स्पून्स, प्लेट्स, सारा सामान क्रॉकरी का, ये सारा कुछ नरेटर का है, उसकी माँ का है, लेकिन शायद वो छोटी लड़की इस फैक्ट को, इस सच्चाई को नहीं जानती। She cracked a joke about eating dinner in those antique plates. बल्कि वो नरेटर से मजाक में भी कह देती है कि हम इन एंटीक प्लेट्स में, पुराने जमाने की प्लेट्स में खाना खाते हैं। The narrator also found a burn mark on the tablecloth. नरेटर को उस टेबल क्लॉथ पे, जो टेबल पे लगा हुआ था, उस पर एक जले का निशान मिलता है। मतलब वो उसकी माँ के जमाने से ही वो थोड़ा सा जला था और मिसेस डॉर्लिंग ने उसको रिपेयर भी नहीं किया था, मेंट भी नहीं किया था। The narrator remembers the time when her mother was alive and the narrator was at home either bored or ill. नरेटर को अपना वो पुराना समय याद आता है कि जब उसकी माँ जिंदा थी और वो घर पर आई थी और वहां पे बैठी बोर हो रही थी या कुछ बीमार हो गई थी। Her mother asked her to polish the silver cutlery. तब उसकी माँ ने कहा था कि वो चांदी की जो कटलरी है उसको साफ कर दे, पॉलिश कर दे। She was surprised to hear that the cutlery that they were using was made of silver, and even Mrs. Darling's daughter was surprised to hear that they were using silver cutlery for everyday eating. अब उसको ये याद आता है कि उसकी माँ ने वो सिल्वर कटलरी जब उसको पॉलिश करने को दी थी नरेटर को, जब वो घर पर बैठी बोर हो रही थी, तब उसको पता चला था कि ये जो चांदी की प्लेट में वो लोग रोज खाना खाते थे। और इवन जब ये बात वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से डिस्कस करती है, तब वो भी जानकर ये हैरान रह जाती है कि जिन प्लेट्स में, स्पून्स में वो रोज खाना खाते हैं, वो चांदी का बना हुआ है। Narrator decided that she could not stay there anymore. Narrator ये डिसाइड करती है कि अब वो वहाँ बिल्कुल नहीं रुकेगी। The address was correct, but the narrator did not want to remember it anymore. एड्रेस जहाँ वो पहुँची थी, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन अब वो वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी और ना उस एड्रेस को याद रखना चाहती थी। She felt that the objects were linked to a memory of a time which no longer existed. वो ये फील करती है कि जो वो ऑब्जेक्ट्स थे, जो बिलोंगिंग्स थे, वो एक समय को से जुड़े हुए हैं और एक याद से जुड़े हुए हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। They had lost their value in the strange surroundings. और उन्होंने एक स्ट्रेंज, एक अजनबी जगह पर अपनी वैल्यू, अपनी पहचान खो दी है। She comforted herself by thinking that her present house was too small to accommodate all the old stuff. वो ये भी सोचती है और अपने आप को इस बात से भी तसल्ली देती है कि प्रेजेंटली वो जिस रूम में, जिस घर में रह रही थी, वो बहुत छोटा था और इतना सारा बिलोंगिंग्स, इतना सारा सामान पुराना
वो अपने घर में एडजस्ट नहीं कर सकती, ना वहाँ पे स्पेस नहीं था। शी लेफ्ट द हाउस लीविंग ऑल हर फैमिलीज बिलोंगिंग्स बिहाइंड। उसने तुरंत घर को छोड़ दिया और सारा अपनी फैमिली का बिलोंगिंग, सारा सामान वहीं उस घर में पीछे ही छोड़ दिया। चिल्ड्रन, व्हाट द नरेटर थॉट कि फर्स्टली उसको ये लगा उसकी माँ चीज़ों की जिस तरह से केयर करती थी, अच्छे से रखती थी, उनको उन चीज़ों की वैल्यू थी, क्योंकि उन्होंने खुद वो सामान परचेज किया हुआ था। मिसेस डॉर्लिंग के घर में सामान जिस तरह से गंदगी के साथ रखा था, टेस्टलेस बेढंगे तरीके से, वो अपनी वैल्यू खो चुका था। अब उसकी वो वैल्यू नहीं रह गई थी। सेकेंडली शी फेल्ट कि अब उसके घर में जगह नहीं है कि वो इतना सारा सामान एडजस्ट कर सके। वो बहुत छोटे से घर में उसने अपने आप को वॉर के बाद सेटल किया था। थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसने ये सोचा कि अगर वो सारा सामान ले भी जाती है तो वो बार बार नॉस्टैल्जिक होगी, यानी पुरानी मेमोरीज से ही जुड़ी रहेगी, उन्हीं को याद कर करके परेशान होती रहेगी, पास्ट में ही जीती रहेगी और जिंदगी में मूव ऑन नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि इन सामानों को ले जाना बेकार है और उनको उसने उसी नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट यानी मिसेस डॉर्लिंग के घर पर ही छोड़ दिया। चिल्ड्रन, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ द वैल्यूज हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर। क्या वैल्यू बताई गई है? फर्स्ट वन इज वॉर्स हार्म एवरीवन। युद्ध के बारे में बताया है, वॉर के बारे में, कि वो सबको हार्म करते हैं। ये चैप्टर आपको हाईलाइट करता है वो एगोनीज वर्क, डिफिकल्टीज और जो सेपरेशन आता है अपने डियर वन से, लव्ड वन से, आप सेपरेट हो जाते हो और बहुत सारी फैमिलीज बिखर जाती हैं, तो वॉर किसी को फायदा नहीं पहुंचाते, हर तरह से डिस्ट्रक्शन ही लाते हैं। तो नरेटर ने बार बार लिखा है कि कभी भी वॉर नहीं होने चाहिए। अनएथिकल बिहेवियर। अब वॉर के वक्त मिसेस एस यानी नरेटर की मदर ने अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी एक ओल्ड एक्वेंटेंस, पुरानी जान पहचान मिसेस डॉर्लिंग को दे दी, उन पर ट्रस्ट करके। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो सामान देना ही नहीं चाहती थी और वो शुरू से ही मिसेस एस को चीट कर रही थी। वो सामान इसलिए ही लाई थी कि उसको पता था कि युद्ध के समय कुछ भी हो सकता है और वो सारा सामान वो अपने साथ रख लेगी। तो ये बिहेवियर बहुत अनएथिकल था, ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी को शो नहीं करता। उसने वॉर के पीरियड का फायदा उठाया मिसेस डॉर्लिंग ने और फ्रॉड किया मिसेस एस के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। एक्चुअली शी डिड नॉट इंटेंड टू रिटर्न दोस प्रेशियस थिंग्स। वो वापस ही नहीं करना चाहती थी मिसेस डॉर्लिंग, और जबकि उसको इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। जब नरेटर उसके घर पे पहुंची तो उसका सामान वापस करना चाहिए था उसी डिग्निटी के साथ, जबकि उसने तुरंत उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। चिल्ड्रन, डोंट शो सच बिहेवियर, डोंट डू सच थिंग्स, they are wrong. Now I hope you have understood the whole chapter. You have liked it and enjoyed it very much. Thank you so much.